Hello, good morning student. We were studying about the Rutherford's nuclear model of atom. So we did the experiment in the previous video and we saw the observations and then conclusions. On the basis of that, Rutherford concluded and he gave his model. According to his model, the positive charge and most of the mass of the atom was concentrated in extremely small region, and this very small portion of the atom was called as nucleus by the Rutherford. So Rutherford discovered the nucleus. The nucleus surrounded by electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths, and he called them as orbits. Thus Rutherford's model atom resembles to the solar system, in which the nucleus play the role of sun and the electrons that of revolving planets. Electron and the nucleus are held together by electrostatic force of attraction. This is all about the Rutherford's model. Before going into the drawbacks of Rutherford model, we have to discuss 2-3 points. They are very important. Number one is atomic number and mass number. ये अच्छे तरह से जान लीजिए, किसी भी एटम में प्रोटॉन का नंबर उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि किसी भी तरीके से प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता. आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, बट सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी सोडियम ही रहता है, इट चेंजेस इनटू सोडियम आयन. और इसी तरीके से Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cl माइनस ही रहता है, क्लोरीन ही रहता है, Cl माइनस में चेंज हो जाता है, बट बेसिक प्रॉपर्टीज उसकी क्लोरीन की ही रहती हैं. इसी तरीके से न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने 9th में पढ़े हैं, 1H1, 1H2, 1H3. In all cases, they show the property of hydrogen. That means total property, chemical and physical, governed by the number of protons inside the nucleus. So, number of proton is known as a fundamental property, and it explained as atomic number. It's very, very important point. And its symbol is Z. So, number of proton equal to atomic number. Number of proton, as atom is neutral, so this number of proton will be equal to number of electron also for the neutral atom. Sodium and neutron का जो नंबर होता है वो वेरिएबल होता है. प्रोटॉन के या तो बराबर होगा या उससे 1 या 2 या कुछ ज़्यादा होगा. एंड ये स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए होता है. दैट विल बी स्टडी इन द हायर क्लासेस. यहाँ पर केवल आपको इलेक्ट्रॉन्स का ही स्टडी करना है. सो to maintain electrical neutrality, atomic number will be equal to number of the protons equal to the number of electrons in a neutral atom. लेकिन जो एटॉमिक मास है वो मासिव पार्टिकल मिलके बनाते हैं किसी भी एटम के मास को. तो मासिव पार्टिकल जिनमें मास है वो बेसिकली कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम होता है, एंड इट इज क्वाइट नेग्लिजिबल. सो इसका रोल बहुत कम है. दैट्स वाई वी कंसिडर ओनली द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर द मास ऑफ एटम, एंड इट इज नोन एज मास नंबर. बिकॉज ये ऑलवेज किस में होगा? होल नंबर में, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसीलिए एटॉमिक मास नंबर भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. So atomic mass number is equal to total number of nucleons. Nucleons मतलब particle present inside the nucleus, that is neutron and proton. So mass number is equal to number of protons plus number of neutrons is equal to number of nucleons inside the nucleus. So in this way you can calculate. If one is given to you, another easily you will calculate. Now next one is isotopes and isobars. Isotopes are the atoms which have same atomic number but different mass number. So due to same atomic number, they have the same electronic number also. Your total chemical properties depend upon the number of electrons, क्योंकि chemical reaction में electrons का exchange होता है. That's why all the isotopes have same chemical properties. Due to and isotopes arise due to difference in neutronic number. ठीक है, और they all have same properties, but physical properties slightly different due to the change in number of the nucleons, that is the neutrons. And another important point, reaction may be slightly slow due to the increase in the neutron in the nucleus. Isobars are the example for the isotopes. कुछ examples आपको करने हैं. For example, हाइड्रोजन के आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3. क्लोरीन के आइसोटोप
Cl35 and Cl37, ऑक्सीजन के आइसोटोप O16, O17, O18, almost all elements having the isotopes. Next is isobars. They have same mass number but different atomic number. तो आइसोबार में चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए ये डिफरेंट एलिमेंट होंगे और इनकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी. फॉर एग्जाम्पल C6, C14 एंड 7 एंड 14 दोनों का ही मास नंबर 14 है. ठीक है, तो ये एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने के बाद जैसे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी. This is example of isotopes of hydrogen, carbon, chlorine. So there are some examples of the isobars. एक और भी well known example है 20Ca40 calcium and argon का 18Ar40. These are the example of isobar. So by studying them you can calculate which one are isotopes and which one are isobars. There are some problem. You can do them. It's very simple. हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट कि वो न्यूट्रल एलिमेंट है या नहीं. फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में 2.2 में आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर 18 दे रखा है और प्रोटॉन का है 16, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है. ठीक है, और 16 प्रोटॉन नंबर है, इसका मतलब ये कौन है, सल्फर. तो सल्फर पे -2 चार्ज है, हेंस इट्स सिंबल विल बी S-2. सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट the charge over the given ion or given species. Drawbacks of Rutherford model. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया. ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे सोलर सिस्टम में सन होता है वैसे मेरा न्यूक्लियस है और जैसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन एक डिफरेंस है, सोलर सिस्टम में एक तो बॉडीज बहुत बड़ी होती हैं और एटम में बॉडीज बहुत छोटी हैं, माइक्रोस्कोपिक साइज की हैं. नंबर 2, वहां पर बॉडीज चार्ज नहीं है, सोलर सिस्टम में न्यूट्रल हैं और यहां पर इन पर चार्ज है. ठीक है, तो जो कूलम फोर्स है F = K1Q2/r², यहाँ पर Q1 Q2 चार्ज है दोनों पर, आपके न्यूक्लियस पे, इलेक्ट्रॉन पे, दोनों पे चार्ज है. R उनके बीच का डिस्टेंस है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. ये जो है किसके इक्वल होता है, G = M1M2/r², यानी कि ये वाला जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ये दोनों पर है, ये प्लैनेट्स पर भी है और ये आपके एटम में भी है. ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी है या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी है. राइट, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है कि न्यूटन्स के लॉज को हम एक्सप्लेन करें, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स. सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, उनके बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो, और ये लगातार जो ये घूमते रहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और इस तरीके से वो वेल डिफाइंड ऑर्बिट में बने रहते हैं. लेकिन और ये भी हमें मालूम है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट है लेकिन फिर भी उसमें एक्सीलरेशन होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. ये आपने 9th में भी पढ़ा था. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो एटम के चारों तरफ घूम रहे हैं, चूंकि वो लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इसलिए उनमें भी एक्सीलरेशन होगा. अब हमारी जो मैक्सवेल की थ्योरी है वो ये कहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड मोशन से में है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा. इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे लेकिन सोलर सिस्टम में प्लैनेट नहीं निकालेंगे क्योंकि प्लैनेट चार्ज नहीं है. अब अगर ऐसी बात है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा और अगर हम प्रैक्टिकली देखें इस चीज को तो 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर स्पाइरल करके वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकालेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी. लेकिन एक बात, ऐसा कभी होता नहीं है. दूसरी बात, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो मिनी थॉमसन मॉडल में बदल जाएगा और फिर रदरफोर्ड ने जो इतनी मेहनत की वो सारी खत्म हो जाएगी. इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि रदरफोर्ड भी अपने मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी स्टेबिलिटी वो नहीं बता पाए. लेकिन हम रदरफोर्ड को क्यों पढ़ रहे हैं, हमने शुरू में ही कहा था कि मॉडल डिस्कार्डेड है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है कि उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की. ठीक है, सो
दिस इज द रीजन कि एक सीक्वेंस होता है किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और सबके कंट्रीब्यूशन को, जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हुए चलते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि इफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सिंस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लीडिंग टू द इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मान लें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम ही नहीं रहा, क्योंकि हम तो मान ही रहे हैं ना, दिखाई तो कुछ भी नहीं दे रहा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मानेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन फट से न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, तो फिर वो थॉमसन्स मॉडल बन जाएगा, राइट। सो ये भी नहीं मान सकते। दूसरा एक ड्रॉबैक और भी है इसमें कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, उन्होंने ये तो कह दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर क्या है, कितने किस ऑर्बिट में घूमेंगे, एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं रहे, ये सब चीजों भी रदरफोर्ड ने अपने में एक्सप्लेन नहीं की थी। थैंक यू।